Hello everyone, welcome to the new lecture of building construction and materials. In previous lecture, we have studied about arches and lintels. Okay, so this is the topic from unit number 3. Okay, so in unit number 3, we have completed two topics. First is stonework and then arch and lintels. So the third topic in unit number 3 is dam proofing course or dam proofing. Okay, if you remember the syllabus, the third unit consists of three content, that is stonework, after that arches and lintels, then dam proofing. Okay, these are the content from unit number 3. So we have completed the top two content, that is stonework and arches and lintel. The third one is a dam proofing course. Okay, हमने इसके पहले दो चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं. थर्ड जो यूनिट नंबर 3 में तीसरा पार्ट होता है वो डैम प्रूफिंग कोर्स का होता है. तो हम देखेंगे कि ये डैम प्रूफिंग क्या होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इसकी कॉजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, किस तरीके से डैम प्रूफिंग किया जाता है. उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डैम प्रूफिंग एक्चुअली में क्या चीज़ है. देखिए, डैम प्रूफिंग, व्हाट इज डैम प्रूफिंग. डैम प्रूफिंग एक्चुअली में क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो जैसे कि डैम्पनेस का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है ना. डैम्पनेस का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वाटर का बिल्डिंग के अंदर आना. ठीक है, वाटर का बिल्डिंग के अंदर पेनेट्रेट होकर वॉल्स के अंदर जाना, आप बोल सकते हो प्लास्टर के अंदर जाना, फ्लोर के अंदर जाना. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पेनेट्रेशन ऑफ मॉइस्चर, दैट इज नथिंग बट डैम्पनेस. तो डैम्पनेस का मतलब मॉइस्चर कंटेंट होता है, याद रखिए. ठीक है, पानी का बिल्डिंग के अंदर आना. अब आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज ड्यू टू द मॉइस्चर. ओके, ये जो हुआ है किस वजह से हुआ है, यहाँ पे हो सकता है कोई वाटर पाइप लीक हो जिसकी वजह से ये पूरा वाटर जो है ये बिल्डिंग के अंदर, वॉल के अंदर जा चुका है, फ्लोर में और ये वॉल में. देखिए, दीज आर द पैचेस. ये क्या हो गया, पैचेस बन गए वाटर की वजह से. ठीक है, ये जो पैचेस बन गए हैं इसे बोलते हैं हम डैम्पनेस हो गई, यानी कि बिल्डिंग में डैम्पनेस हो गया. हमें इसे रोकना चाहिए हमेशा. क्यों रोकना चाहिए, क्योंकि ये पूरे प्लास्टर को खराब करेगा, पेंट को खराब करेगा. ठीक है ना. जो भी आपका एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं दिखता है, इट डजंट अपीयर गुड ऑल्सो. बट एज if you consider strength wise, it get the structure get weak. Okay, the structure is not as strong as it was before the dampness. Okay, after the dampness the structure got weak. Okay, so this weakness of walls, column, floors is due to dampness also. So we have to prevent this dampness. We have to avoid dampness coming into the structural element. So how we can avoid it, we will see. First of all, let's see the introduction. See, dampness is a common problem in building. It happened in every building, every structure. Okay, how? Because of the rainfall, because of some leakages in the water pipe. Okay, the access is it got access from everywhere. Okay, so that's why this is considered to be very common problem. Okay, this is not something new. This is coming from stone ages. Okay, this problem is coming from right from the stone ages, because moisture is still there. Okay, moisture was still there. So this is a very common problem. Okay, so next is, it refers to access and penetration of moisture content into building through its wall, floor, roof. Now this is very important. How the moisture comes, what is the access, what is the route of moisture. Okay, how moisture comes into the building, through which path. So through walls, floors and roofs. Okay, it refers to the access and penetration of moisture content into the building through walls, roofs and floors. Okay, so what are the ways, or what are the passages from which it coming, which through which it comes into the building? Through walls, floors and roofs. Okay, so जहाँ ये बिल्डिंग है, किस वजह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक्सेस. सबसे पहली चीज, इट रिफर्स टू द एक्सेस, यानी कि व्हाट इज डैम प्रूफिंग. ये इट रिफर्स टू द एक्सेस एंड पेनिट्रेशन. ओके, पेनिट्रेशन मीन्स कमिंग, आप बोल सकते हो पेनिट्रेशन का मतलब होता है वॉल के अंदर पेनिट्रेट होना, अंदर जाना वॉल के. ठीक है, सो पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इनटू द बिल्डिंग थ्रू वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ्स.
यानी कि वॉल के थ्रू भी आ सकता है। जैसे कि कोई भी हम अगर ये बिल्डिंग एक फॉर एग्जांपल इफ यू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग लाइक दिस, ओके, सो सपोज ड्यू टू रेनफॉल, ओके, due to rainfall what will happen, water will penetrate, okay, through walls. Okay, suppose this is the outer wall. If rainfall happens, what will happen, the water will hit the walls, and there is a chances that the water may get penetrate into the external walls. Okay, so this is due to rainfall, or maybe some kind of a leakages in the pipe. Okay, जैसे कि ये आपका एक बिल्डिंग है, इसका एक्सटर्नल वॉल है, एक्सटर्नल वॉल पे जब रेनफॉल होगा तो ये जब वॉल वाटर जो टकराएगा वॉल से, हो सकता है चांसेस है यहाँ पे कि ये पेनेट्रेट होके अंदर चला जाए। इसके अलावा क्या होता है ना, आप हमेशा देखते होंगे बिल्डिंग में पाइप्स होते हैं, सैनिटरी पाइप्स होते हैं, है ना। आप हमेशा देखे होंगे बिल्डिंग के पीछे होते हैं जनरली सैनिटरी फिटिंग्स होती है, ठीक है ना, जो वेस्ट है बाथरूम वेस्ट वगैरह, ये थ्रू पाइप के जरिए, है ना, नीचे की तरफ जाता है। तो ये पाइप जो है ये वॉल से बिल्कुल एक काफी क्लोज होते हैं। तो अगर लीकेज हो गया कोई भी पाइप में, थ्रू दिस लीकेज वाटर मे गेट पेनेट्रेटेड इनटू द बिल्डिंग, ओके, थ्रू द एक्सटर्नल वॉल्स। तो जब वाटर जब आएगा, जब ये पेनेट्रेट होगा, जब, ठीक है ना, तो पेनेट्रेट होने के बाद वॉल के अंदर जाने के बाद पूरा बॉन्ड को खराब करेगा, जॉइंट्स को खराब करेगा, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके वॉल या कॉलम फ्लोर्स के लिए या रूफ के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। इसलिए हमें रोकना है वाटर को अंदर पेनिट्रेट होने के, इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। हमको वाटर को हमेशा रोकना है क्योंकि वो जाके पूरा खराब करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है। हम देखेंगे कि उसके इफेक्ट भी क्या क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम आप ये भी देखेंगे कि वो क्या क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये वॉल के थ्रू हो सकता है, फ्लोर के थ्रू हो सकता है, जैसे कि फ्लोर आप वॉश करते हैं, हमेशा हम फ्लोर वॉश करते हैं, पानी वहाँ पे जमा होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, ठीक है ना। वाटर जब वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से फ्लोर्स के अंदर वाटर जो लीकेजेस है, जो छोटे छोटे जो जॉइंट्स होते हैं फ्लोर्स में, तो उस जॉइंट के थ्रू पेनेट्रेट होके स्लैब में जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस स्लैब को भी खराब करता है, वीक करेगा उसको। सिमिलरली रूफ के ऊपर, ठीक है ना, जो छत हो गया, वाटर आने के बाद अगर वहाँ पे प्रॉपर स्लोप नहीं है तो पानी वहाँ पर भी जमा हो जाएगा छत पर और पेनिट्रेट होना चालू हो जाएगा। जहाँ वाटर एक्यूमुलेट हुआ वहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली इट गेट पेनिट्रेटेड इनटू द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। Okay, that's why the first and the most important thing is try to make the sloping surface so that the water will not accumulate. First thing we have to do is to avoid accumulation of the water. Okay, इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमें पानी को एक्यूमुलेट यानी कि जमा होने से रोकना है, एक जगह रुकने से रोकना है, ठीक है ना। जो ठहरा हुआ पानी है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वाटर, वो क्या होगा, वो पेनिट्रेट होता है बिल्डिंग में, ठीक है ना। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि जो हमारा छत रहे या फ्लोर रहे वो वॉशेबल फ्लोर रहे, ठीक है ना। वहाँ पे एक हल्का सा स्लोपिंग रहे ताकि वाटर एक्यूमुलेट ना हो, हल्का स्लोप रहे ताकि पानी एक जगह जाके वहाँ से ड्रेन ऑफ हो जाए, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है, पानी को हमेशा हमें एक्यूमुलेट होने से रोकना है, मॉइस्चर को। अगर वो एक्यूमुलेट होता है तो हाई चांसेस है कि वो अंदर पेनिट्रेट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मॉइस्चर कंटेंट अंदर आता है बिल्डिंग के। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट डैम्पनेस, हमें हमेशा मेजर्स लेना है। हर बिल्डिंग में ये मेजर्स लिए जाते हैं कि जो डैम्पनेस है उसे बिल्डिंग के अंदर आने से रोका जाए। सच मेजर्स इज कॉल्ड एज डैम्प। अब ये जो आप मेजर्स लेंगे इसे ही हम बोलते हैं डैम प्रूफिंग करना है। ये डैम्पनेस का मतलब तो आप समझ गया, प्रूफिंग मतलब उसको हमें चेक करना है, उसको रोकना है, ठीक है ना, उसे हमें प्रिवेंट करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डैम प्रूफिंग, जो कि सिमिलर एक वाटर प्रूफिंग की तरह भी होता है, ठीक है। आपने वाटर प्रूफिंग का भी नाम सुने ही होंगे, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैम प्रूफिंग, ठीक है। वाटर प्रूफिंग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ द सरफेस और स्ट्रक्चर इन अ बिल्डिंग टू प्रिवेंट लीकेजेस। अब हम देखते हैं कि वाटर प्रूफिंग, अगर कोई पाइप लीक हो रहा है तो हम उसे वाटर प्रूफिंग करते हैं, कोई टैंक में से लीकेज हो रहा है तो हमें उस लीकेज को हम ठीक करते हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर प्रूफिंग या डैम प्रूफिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ गया है डैम प्रूफिंग का। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉजेज ऑफ डैम्पनेस। देखिए वाटर किस वजह से
आता है या डैम्पनेस किस वजह से होती है, अब हम वो देखेंगे। देखिए कॉजेज क्या क्या है। मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, द मटेरियल यूज फॉर फाउंडेशन एंड फ्लोर्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल एंड इट राइजेज अप टू द सरफेस ऑफ द बिल्डिंग। देखिए सपोज यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। सपोज ये बिल्डिंग है और हो सकता है कि यहाँ पे इसके फाउंडेशन, ये फाउंडेशन हो गया, अज्यूम कीजिए कि ये इसके फाउंडेशन हो गया, ठीक है, ये सब आप अज्यूम कीजिए कि ये फाउंडेशन है, ठीक है, ये फाउंडेशन के पार्ट हो गए ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे वाटर लेवल हो एक लेवल पे, ठीक है ना, या नीचे हो, वाटर लेवल कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, वाटर लेवल हो सकता है। इसके अलावा ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो ये जो सॉइल है, ठीक है ना, मॉइस्चर इसमें ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सॉइल, ठीक है ना, तो क्या होता है, ये जो मॉइस्चर है ये थ्रू फाउंडेशन कॉलम ये क्या होता है, राइज होना चालू होता है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है धीरे धीरे से फाउंडेशन के थ्रू, ठीक है ना, वाटर क्या होता है, राइज होना चालू होता है, इसे हम कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हर जगह होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाटर जब कांटेक्ट में आता है किसी भी फाउंडेशन में, ठीक है ना, तो हल्का हल्का सा ऊपर राइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड के जरिए पानी जो है वो बिल्डिंग में आ सकता है, फ्लोर में आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही लिखा है यहाँ पे, द मटेरियल यूज फॉर फाउंडेशन एंड फ्लोर्स absorb moisture from the soil and it rises up to the surface of building, ठीक है ना। उसके बाद वो राइज हो जाता है सरफेस ऑफ बिल्डिंग में, किस वजह से, अगर ये फाउंडेशन के आसपास वाटर है ज़्यादा, ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पे रेनफॉल की वजह से, पेनिट्रेशन होने की वजह से पानी अंदर ज़्यादा जमा हो गया हो, इस वजह से पानी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्प्लैशिंग ऑफ रेन, जो हमने जब भी देखे थे कि रेनफॉल अगर होती है, ठीक है ना, रेनफॉल अगर होती है किसी भी साइड से हो, ठीक है ना, एक्सटर्नल वॉल पे वो जो स्प्लैश पड़ते हैं, ठीक है ना, रेन, स्प्लैशिंग ऑफ रेन जो होता है, व्हेन रेन स्प्लैशेस ऑन द एक्सटर्नल वॉल डैम्पनेस में एंटर द इंटीरियर, यानी कि इंटीरियर पार्ट में आ सकता है थ्रू एक्सटीरियर। जैसे कि ये रेनफॉल की वजह से एक्सटर्नल वॉल में से पानी क्या होगा, यहाँ पे जब स्प्लैश होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, फिर चांसेस है कि वो धीरे धीरे से आप बोल सकते हो कि वो पेनेट्रेट हो जाए बिल्डिंग में, ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से पेनेट्रेशन हो जाता है उसका बिल्डिंग के अंदर, धीरे धीरे से वॉल के थ्रू वो नीचे की तरफ आकर इस तरीके से पेनेट्रेट हो जाता है और फ्लोर में आके जमा हो जाता है पानी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज स्प्लैशिंग ऑफ रेन, इसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सपोज टॉप वॉल्स, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, देखिए द dampness enter from the top of the top if the top of parapet wall are not given sufficient damp proofing force। इसका मैं सिंपल बताता हूँ आपको। हमने एक पढ़े थे कोपिंग, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था आपको याद होगा, कोई भी एक एक्सटर्नल अगर वॉल है, जैसे कि ये एक एक्सटर्नल वॉल है सपोज, तो आपने देखे थे कि उसमें हमने क्या किए थे, उसमें हमने ऐसा कुछ इस तरीके से ये टॉप वॉल के ऊपर इस तरीके से बना दिए थे ताकि वो पानी जब आए ऊपर से तो वो स्लोप के जरिए इधर उधर निकल जाए, दिस इज कॉल्ड एज कोपिंग, है ना, इस तरीके से हमने कर दिए थे उसको, कोपिंग कर दिए थे। आप यहाँ इमेजिन कीजिए कि टेरेस की वॉल जो होती है, पैरापेट वॉल, अगर उसमें हमने इस तरीके से अगर हम कोपिंग करते हैं तो क्या होता है, वाटर जब आएगा, ये भी रेनफॉल की वजह से ही होता है, वाटर जब टॉप के ऊपर आएगा तो क्या होगा, वो ये स्लोप की वजह से, ये जो इस तरीके से हमने कोपिंग की है उसकी वजह से वाटर इस तरीके से निकल जाएगा, अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक्सपोज टॉप वॉल को हमने कोपिंग करने की वजह से भी हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, वो भी एक तरह का डैम प्रूफिंग ही होगा, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन, देखिए इसमें क्या होता है, dampness is caused due to condensation of atmospheric moisture deposited on the wall and ceiling। अब आपको पता ही है कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, जिसे हम हिंदी में ओस बोलते हैं, है ना, ओस बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, जब ठंड होती है बहुत ज़्यादा तो ये कंडेंसेशन की वजह से स्पेशली विंटर सीजन में मॉइस्चर डिपॉजिट हो जाता है बिल्डिंग के सरफेस के ऊपर, ओस गिर जाती है, जब फिर वो ओस क्या होती है, मॉइस्चर बन के बिल्डिंग में पेनेट्रेट होती है वॉल के जरिए, सीलिंग के जरिए, ठीक है। ये हो गया कंडेंसेशन, स्पेशली विंटर में होता है ना, हमेशा मॉइस्चर पड़ता है, आप बोल सकते हैं जिसे हम ओस बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट की वजह से भी होता है। कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट मतलब कि ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, अगर कोई फ्लैट स्लैब है, फ्लैट फ्लोर है,
एकदम फ्लैट फ्लोर है, वहाँ पे पानी रुक रहा है, ड्रेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, इस वजह से। प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, पाइप से लीकेजेस है, या बिल्डिंग में स्लोप्स वगैरह प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की है उसकी वजह से। उसके बाद देखिए लैक ऑफ प्रॉपर स्लोपिंग रूफ, डिफेक्टिव पाइप फिटिंग, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई पाइप हो गया, इसकी अगर यहाँ पे जॉइंट के पास वीक है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पूरा मॉइस्चर की वजह से देखिए पूरा सरफेस को इसने खराब कर दिया, पूरा डिटेरियोरेट हो गया सरफेस, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है ना वो लीक हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। यहाँ से जो है ये वाटर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे वाटर लीक होने की वजह से ये देखिए आसपास का पूरा एरिया, इसने ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया उसने खराब कर दिया है, ठीक है। इसका पूरा पेंट और सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव पाइप फिटिंग, इसलिए हमें ध्यान देना है कि जॉइंट्स वगैरह प्रॉपर हो, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपरली सील्ड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, सिमिलरली कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हो या वाटर के जॉइंट्स हो, अगर वो प्रॉपर सील्ड नहीं है, ठीक है ना, सबसे वीक पार्ट जॉइंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी पाइपलाइन का या हर एक चीज़ का, अगर वो प्रॉपर सील नहीं है इवन स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, सीलिंग अगर जॉइंट की प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से डैम्पनेस हो जाती है, ठीक है। ये था हमारा डैम्पनेस के कॉजेज। अब हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या है, अगर ये हो गया बिल्डिंग में तो कैसा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए अभी आपने एक चीज़ तो पढ़ ली है, स्टडीड अबाउट द कॉजेज, हाउ डैम्प प्रूफिंग कॉजेज, हाउ डैम्प प्रूफिंग कम्स इनटू द बिल्डिंग, ओके, हाउ डैम्पनेस कम्स इनटू द बिल्डिंग, ओके। डैम्पनेस किस वजह से होती है, डैम्पनेस कैसा आती है बिल्डिंग में, अभी आपने देखी है। नाउ वी विल सी इफ द डैम्पनेस कम्स व्हाट विल हैपन, हाउ इट विल अफेक्ट द स्ट्रक्चर। लेट्स सी इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस। सबसे पहले व्हाट हैपेंड, अगली पैचेस ऑन द वॉल एंड सीलिंग, जैसे हम मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे कि ये इमेज है इस तरीके से, दिस इज द अगली पैच ऑन द वॉल्स, ठीक है ना, इस तरीके से एकदम खराब एक पैचेस की तरह दिखेगा, है ना, ये कलर अलग, ये कलर अलग, ये क्योंकि ये पूरा मॉइस्चर की वजह से पूरा खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये अगली पैचेस हो जाते हैं किसमें, आपके वॉल्स या सीलिंग में, ठीक है ना। इसके अलावा प्लास्टर जो है, ठीक है ना, जो हम प्लास्टर करते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद क्रम्बल मतलब वो जैसे हिंदी में उसके वो लेयर्स निकल जाते हैं, पपड़ियाँ निकल जाती हैं, लेयर्स निकल जाते हैं, प्लास्टर खराब हो जाता है। इसके अलावा मटेरियल यूज फॉर वॉल डेकोरेशन आर डैमेज, अब आपने पेंट किए हो, डिस्टेम्पर किए हो, हर बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं वॉल को डेकोरेट करने के लिए। अज्यूम कीजिए कि इफ वाटर कम्स, इफ द मॉइस्चर कम्स, डैम्पनेस कम्स into the wall, what will happen, the whole your decorated thing will be damaged, है ना। जो भी आपने डेकोरेशन किए हैं, जो भी चीज़ें डेकोरेट किए हैं, everything will get damaged because of this ugly patches and crumbling of plaster। इसके बाद स्टोन ब्रिक टाइल्स डिसइंटीग्रेट ड्यू टू एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मैंने पहले ही बताया था क्या है, वाइट सॉल्ट के डिपॉजिट होते हैं, जो कि हमेशा मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर वाइट वाइट सॉल्ट के डिपॉजिट आ जाते हैं, ठीक है ना। जो क्या होते हैं वो सॉल्ट अगर स्टोन ब्रिक या टाइल्स में चला जाए अंदर, यानी कि एक तरह का मॉइस्चर ही है, पूरा डिसइंटीग्रेट यानी कि पूरा उसे खराब कर देता है, ठीक है ना, पूरे मटेरियल को खराब करता है, जो भी उसकी कंपोजिशन है उसको खराब कर देता है। सो मॉइस्चर ये भी अफेक्ट करता है। इसके बाद फ्लोर फिनिशिंग जो आपने की है वो डैमेज हो जाती है, जो भी फ्लोर के ऊपर फिनिशिंग है, अलग अलग आप टाइल्स लगाइए, आप कोई भी फ्लोरिंग कीजिए, ठीक है ना, वो पूरी डैमेज हो जाती है। स्पेशली अगर वुड वर्क है तो पूरी तरीके से डीके हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए जो वुड वर्क है, डीके ड्यू टू ड्राई रॉट, ड्राई रॉट का मतलब मॉइस्चर की वजह से वो पूरा डीके हो जाता है, खर जैसे कि ये इमेज आप देख रहे हो, ये पूरा एक वुड मटेरियल है, इसके अंदर वाटर की वजह से पेनेट्रेट होने की वजह से पूरा खराब हो चुका है, तो वुड वर्क भी खराब हो जाता है। मेटल जो है वो तो करोड़ होगा ही होगा, कोई भी अगर मेटल कंपोनेंट है, कोई भी स्टील का एलिमेंट है या मेटल का एलिमेंट है, पूरा वो क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर आने की वजह से, पानी की वजह से पूरा करोड़ हो जाएगा। मॉइस्चर का मतलब यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, वाटर की वजह से। तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से मेटल जो है वो पूरा करोड़ हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो है, आप खुद देखे होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, अगर उसमें पानी चला जाए, उसमें वाटर थोड़ा सा एंटर हो जाए तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब होता है डैम्पनेस की वजह से, वाटर या मॉइस्चर अगर बिल्डिंग में आता है उसकी वजह से। इसके बाद क्या क्या होता है देखिए, डैम्पनेस लीड टू ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोस। अब देखिए अगर कहीं पर डैम्पनेस है या वाटर कहीं पे एक्यूमुलेटेड है, जमा हुआ है पानी कहीं पर,
स्पेशली टेरेस पे अगर हमने स्लोप नहीं प्रोवाइड की है टेरेस पे, क्या हो जाएगा, पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा टेरेस के ऊपर, और उसकी वजह से क्या होगा, मच्छर वगैरह मस्किटोज क्या होगा, ग्रोथ होगी उसकी। उसके अलावा ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स एंड जर्म्स कैरिंग डिसीज सच एज ट्यूबरक्लोसिस, इट ऑल्सो एग्रीवेट्स अस्थमा। इसके अलावा टर्माइट्स जर्म्स वगैरह भी पेनेट्रेशन की वजह से बिल्डिंग के अंदर आते हैं, जो हमारी हेल्थ की वजह से हेल्थ को खराब करते हैं। ठीक है, तो ये टर्माइट जर्म्स वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस। नेक्स्ट इज मटेरियल फॉर डैम्पनेस। अब तो सपोज आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि यहाँ पे डैम्पनेस हो सकता है, अब हमें उसे अवॉइड करना है। वी हैव टू अवॉइड दिस मटेरियल, सॉरी, मटेरियल फॉर डैम प्रूफिंग मीन्स अगर आप कोई डैम प्रूफिंग करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि बिल्डिंग के अंदर पानी ना आए, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डैम प्रूफिंग मटेरियल का यूज करेंगे। डैम प्रूफिंग मटेरियल क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, एक आइडियल डैम प्रूफिंग मटेरियल क्या होता है, ठीक है ना। सो एक आइडियल डैम प्रूफिंग मटेरियल, इट शुड बी impervious फर्स्ट, ड्यूरेबल, देन केपेबल ऑफ बियरिंग द लोड, ओके। उसके बाद डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल यानी कि आसानी से यूज हो जाए, फ्री फ्रॉम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट्स वगैरह, ठीक है ना, उसमें ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये जो सॉल्ट्स है, फ्री फ्रॉम सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स, ठीक है ना। इनएक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, इम्परवियस यानी कि उसमें पेनेट्रेशन नहीं होना चाहिए वाटर का। ओके, इम्परवियस का मीनिंग होता है वाटर का पेनेट्रेट होना किसी मटेरियल, अगर वो परवियस है मतलब पानी उसमें से पेनेट्रेट हो सकता है, बट द मीनिंग ऑफ इम्परवियस इज जिसमें से वाटर पेनेट्रेट या पास ना हो, दैट इज कॉल्ड एज इम्परवियस। उसके बाद ड्यूरेबल होना चाहिए यानी कि वो लॉन्ग रन में आना चाहिए हमेशा, ऐसे नहीं कि हमने एक साल में वो खराब हो जाए, लंबा चलना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, केपेबल ऑफ बियरिंग द लोड। अब डैम प्रूफिंग मटेरियल आपने लगा दी, उसके ऊपर कुछ भी अगर लोड आएगा तो डैम प्रूफिंग जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशनली स्टेबल या स्टडी का मतलब ये होता है कि जो भी हमने जितनी भी लेंथ डैम प्रूफिंग में किए हैं, जो भी चीज़ें हमने उसको प्रोवाइड किया है, उसका डायमेंशन उतना ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी कि हम आसानी से उसे यूज़ कर सकें। आफ्टर दैट फ्री फ्रॉम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सारे जो सॉल्ट्स वगैरह हैं इनसे वो फ्री होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, एफ्लोरेसेंस जो मैंने बताया था आपको, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वाइट डिपॉजिट्स, क्योंकि सॉल्ट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो एफ्लोरेसेंस को अवॉइड करने के लिए हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, शुड नॉट बी कॉस्टली, शुड बी इकोनॉमिकल। ओके, ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम, अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से मटेरियल्स डैम प्रूफिंग को हम यूज़ कर सकते हैं डैम प्रूफिंग के लिए। ऐसे ऐसे मटेरियल्स है जो आपने सुने ही है, आपको बस पता नहीं है उसके बारे में। सबसे पहला जैसे कि हॉट बिटुमिन है, हम हॉट बिटुमिन को भी एज अ डैम प्रूफिंग यानी कि पानी को रोकने वाला मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज डैम प्रूफिंग हॉट बिटुमिन एज अ डैम प्रूफिंग कोर्स। ओके, सो हॉट बिटुमिन जो है वो एक बहुत प्राइम मटेरियल है डैम प्रूफिंग के लिए। तो हॉट बिटुमिन क्या होता है, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, ओके, आसानी से कोई भी शेप में ढल जाता है। ठीक है ना, हॉट बिटुमिन 3 mm थिकनेस में बी अप्लाइड ऑन द बेडिंग ऑफ मॉर्टर ऑफ कंक्रीट। अब कोई भी स्लैब हो, कॉलम हो, कोई भी कोर्स हो, हमको उसमें 3 mm का एक लेयर ब्रश के पेंट से भी हम इसको ठीक है ना, जो पेंट का ब्रश है, कोई भी ब्रश है, हम उससे ही इसको अप्लाई भी कर सकते हैं 3 mm थिकनेस का। ठीक है ना, 3 mm यानी कि 3 mm तक की थिकनेस इसकी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हॉट बिटुमिन है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये कोई भी बिल्डिंग हो गई हमारी, सपोज कोई भी आप बिल्डिंग ले लो। ठीक है, अभी इस बिल्डिंग में कोई भी आप एक फ्लोर ले लो। ठीक है, जैसे कि हमारा ये फ्लोर लेवल है, ये टेरेस है, ये फ्लोर लेवल है, अज्यूम कीजिए कि एक फ्लोर लेवल है। अब हमको अगर इस फ्लोर को डैम प्रूफिंग बनाना है, डैम प्रूफ कोर्स बनाना है, डैम प्रूफ सरफेस बनाना है,
और हमको हॉट बिटुमिन यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 mm तक का डैम प्रूफिंग का एक लेयर यहाँ पे इस तरीके से 3 mm तक का बिल्कुल फ्लोर के जस्ट ऊपर में हम इस तरीके से, ठीक है ना, ये फ्लोर के जस्ट ऊपर में 3 mm तक का हम एक लेयर हॉट बिटुमिन का इस तरीके से अप्लाई कर देंगे कोई भी ब्रश की मदद से। तो क्या होगा, ये एक तरीके का डैम प्रूफिंग कोड, जब इसमें पानी आएगा, वाटर आएगा तो पेनेट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हॉट बिटुमिन हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि एक डैम प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। उसके अलावा मैस्टिक एस्फाल्ट क्या होता है, एक और मटेरियल है, सेमी रिजिड मटेरियल ऑब्टेन बाय हीटिंग एस्फाल्ट विद सैंड एंड मिनरल फिलर्स, इट इज लेड ऑन अ mortar और कंक्रीट बेड, ठीक है ना। ये mortar या कंक्रीट बेड, जो भी कंक्रीट का, जैसे कि हमने स्लैब बनाया, कंक्रीट बेड हो गया, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कर सकते हैं। जो मैस्टिक एस्फाल्ट है, इसमें क्या है, ये सेमी रिजिड मटेरियल है। इसमें क्या होता है, जो एस्फाल्ट है उसको हीट करने के बाद उसमें सैंड या फिर कोई मिनरल फिलर्स को ऐड किया जाता है, सैंड को ऐड किया जाता है और उसको एज अ mortar में यूज किया जाता है। ये भी एक हो गया। आफ्टर दैट बेटुमिनस फेल्ट होता है। बेटुमिनस फेल्ट बेटुमिनस फेल्ट में क्या होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल अवेलेबल इन रोल्स, इस तरीके से शीट्स होती है। हम आपने ये शीट देखे होंगे, ब्लैक कलर की होती है ना, इस तरीके से ये शीट होती है ब्लैक कलर की, ये फोल्ड हो जाती है आसानी से, फ्लेक्सिबल रोल हो जाती है, और इसको फ्लैट मॉडल के फिनिश सरफेस के ऊपर, जैसे कोई भी फ्लोर है उसके ऊपर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, बिछा देते हैं फ्लोर के ऊपर। तो दिस इज बिटुमिनस फेल्ट होता है, बिटुमिनस की शीट भी होती है। इसके अलावा मेटल शीट भी होती है, शीट ऑफ लीड कॉपर वगैरह, इसको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, पॉलीथीन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। इन अ डैम प्रूफिंग लीड इज, लीड जो है, लीड मटेरियल जो है मोस्टली यूज किया जाता है इसके लिए। तो ये हम यहाँ पे शीट्स भी यूज कर सकते हैं, इसका आपको याद रखना है, ठीक है ना। हॉट बिटुमिन, मैस्टिक एस्फाल्ट, बिटुमिनस फेल्ट, मेटल शीट, ये क्या होगा, डैम प्रूफिंग मटेरियल होगा। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स है, जैसे कि कॉम्बिनेशन है शीट और फेल्ट्स का, देखिए यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन, प्लास्टिक की शीट आपने देखे होंगे, जब कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के रोड बनते हैं ना, इस तरीके से ब्लैक पॉलीथीन का यूज करते हैं। इसका काम क्या है, पानी को अंदर जाने से रोकना है, ये ब्लैक पॉलीथीन का यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके अलावा प्लास्टिक शीट्स, देखो ये इस तरीके की प्लास्टिक शीट्स भी होती है ना, जो शीट्स होती है प्लास्टिक की ब्लैक कलर की, ये भी हम यूज करते हैं, जिसकी जो थिकनेस है 0.5 से 1 mm थिक होती है। ये प्लास्टिक शीट्स आपने मैक्सिमम देखी है सीमेंट कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन में, काले कलर की, ब्लैक कलर की जो एक प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं ऊपर। इसके अलावा अगर हम जनरल एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे, तो हमें डैम प्रूफिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर। जैसे कि अगर हम ब्रिक, कोई भी ब्रिक, इफ यू आर यूजिंग एनी थर्ड क्लास ब्रिक, देन यू नीड टू waterproof your building surface. Otherwise, if you are using the first class brick, जिसके आप क्वालिटी ब्रिक्स यूज कर रहे हो, जो कि है वाटर कम एब्जॉर्ब करती है, 4.5% ऑफ देयर वेट by use of dam proofing. These bricks are laid in 2 to 4 courses in cement mortar. The joint of bricks are kept open. इसमें क्या होता है कि ये स्पेशल क्वालिटीज की ब्रिक आती है, जो पानी को अंदर जाने से रोकती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन उसकी जो है वो कम होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है ये ब्रिक्स, और पानी को अंदर जाने से रोकती है। इसके अलावा mortar में, cement mortar in the ratio 1:3 is used for bedding layers over dam proofing course. It may be mixed with slack lime to improve its workability. इसमें क्या होता है, 1:3 का, 1 part of cement, 3 part of sand, हम सीमेंट mortar रेडी करते हैं, ठीक है ना, डैम प्रूफिंग कोर्स के ऊपर, ठीक है ना, लेयर्स में लगाते हैं इसे। इट में मिक्स विथ स्लैक लाइम, इसमें अगर हम लाइम यू ऐड करेंगे तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो डैम प्रूफिंग की तरह काम करता है। इसके अलावा सीमेंट कंक्रीट कोर्स, सीमेंट कंक्रीट कोर्स ऑफ प्रोपोर्शन 1:2:4 या 1:1.5:3, एंड थिकनेस इसकी 40 से 150 mm इज लेड ऑन अ मेसनरी एट प्लिंथ लेवल। ये हमेशा आपने देखो प्लिंथ लेवल पे हम इसे अप्लाई करते हैं, सेम ये प्रपोर्शन से, तो ये भी डैम प्रूफिंग को रोकता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ डैम प्रूफिंग देखते हैं हम। मटेरियल इंपॉर्टेंट था, हॉट बिटुमिन है, ठीक है ना, याद रखिए, मैस्टिक एस्फाल्ट, बिटुमिनस फेल्ट, मेटल शीट होती है, कॉम्बिनेशन है शीट का, पेंट का। इसके अलावा प्लास्टिक शीट्स होती है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स या मॉर्टर आप यूज करो प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो ये चीज़ें भी वाटर को अंदर आने से रोकती है, ठीक है। इसके अलावा
प्रिंसिपल्स ऑफ डैम प्रूफिंग, यानी कि डैम प्रूफिंग के आपको डैम प्रूफिंग करते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है होने चाहिए, देखिए mortar bed prepare to receive dam proofing course should be leveled। अब किसी भी लेवल के ऊपर आपको mortar बेड पे डैम प्रूफिंग कोर्स डालना है। जैसे कि आपने स्लैब बना लिया, अब आपको स्लैब के ऊपर डीपीसी यानी कि डैम प्रूफिंग कोर्स डालना है। कोई हॉट बिटुमेन डालो या कोई भी मटेरियल डालो, तो आपको क्या चाहिए कि जो लेवल सरफेस होना चाहिए, यानी कि जो स्लैब है वो लेवल सरफेस पे होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, डैम प्रूफिंग अप्लाई नहीं होगा प्रॉपर। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक लेवल सरफेस पे, ठीक है। इसके अलावा द डैम प्रूफिंग कोर्स शुड कवर द फुल थिकनेस ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग रेंडरिंग। इसमें क्या होगा, जो भी वॉल थिकनेस आपने वॉल के ऊपर, जैसे कि पैरापेट वॉल के ऊपर आप लगा रहे हो, ठीक है ना, तो पैरापेट वॉल के टॉप सरफेस की पूरी थिकनेस को डैम प्रूफिंग कवर करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इफ शीट और मैस्टिक एस्फाल्ट आर यूज द गैप शुड नॉट बी लेस देन 100 mm एट एनी पॉइंट। अगर कोई भी शीट यूज, जैसे कि 2 शीट हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी सरफेस के ऊपर एक हमने प्लास्टिक की शीट बिछा दी, फिर उसके बाजू में एक और शीट हमने लगा दी, तो ये जो दूसरी शीट लगाया हमने, ये दोनों का जो गैप है, ठीक है ना, ये जो गैप है वो 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। द गैप शुड नॉट बी लेस देन 100 mm, एटलीस्ट 100 mm का गैप होना चाहिए। इसके अलावा एट जंक्शन एंड कॉर्नर्स ऑफ वॉल डैम प्रूफिंग कोर्स शुड बी लेट कंटिन्यूस। कोई भी जंक्शन रहे या कॉर्नर है, इसमें डैम प्रूफिंग कंटिन्यूस होना। जैसे कि ये वॉल का टॉप सरफेस है, आपको यहाँ पे डैम प्रूफिंग करते गए यहाँ पे आपको रुकना है, कंटिन्यूस कोई भी जंक्शन आए या कुछ भी आए, ठीक है ना, कॉर्नर से आपको कंटिन्यू डैम प्रूफिंग लगाना है। डैम प्रूफिंग कोर्स शुड नॉट बी केप्ट एक्सपोज्ड ऑन द वॉल सरफेस। अब इसमें जैसे कि एक चीज याद रखिए, इसे कोई पेंट की तरह हम नहीं लगाएंगे, डिस्टेम्पर की तरह इसको नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना, एकदम एक्सपोज नहीं करेंगे इस तरीके से। हमें क्या करना पड़ेगा, ये बीच में रहेगा, हो सकता है डैम प्रूफिंग, फिर उसके बाद हम पेंट वगैरह लगाएंगे, ऐसा नहीं कि डैम प्रूफिंग ऊपर दिखेगा, ठीक है। At vertical and horizontal junction, dam proofing course should be continuous and a cement mortar fillet of about 75 mm should cover the joint। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस ही रहना चाहिए जनरली। इसके अलावा इम्पोर्टेंट, अब उसके अप्लाई कैसा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग, हमें किस तरह अप्लाई करना है, मैं शॉर्ट में आपको इसको बता देता हूँ। डैम प्रूफिंग अलग अलग पार्ट में अप्लाई होता है। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि फाउंडेशन है, this method of protecting foundation of outer wall and air drain is constructed, the drain is covered with RCC slab grating provided at regular interval, horizontal and vertical dam proofing courses also provided। अब देखो यहाँ पे ये स्लैब है, ये सॉरी ये आपका फाउंडेशन हो गया, ये प्लिंथ लेवल है। जहाँ पे फाउंडेशन खत्म हो रहा है वहाँ पे आपको एक डीपीसी कोर्स यानी कि डैम प्रूफिंग कोर्स का एक लेयर लगाना है। हो सकता है इसको हम वर्टिकल भी लगाए, और जहाँ पे फाउंडेशन जस्ट खत्म हो रहा है प्लिंथ के पास उसे हमें लगाना है, ठीक है, ये होगा पहला। उसके अलावा देखिए फ्लोर्स के ऊपर किस तरह लगेगा डीपीसी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे कि हम फ्लोर्स में देखते हैं, ये फ्लोर का लेयर पूरी थिकनेस है, ठीक है ना। एक बार आपने सबसे पहले एक मोटर लेंगे, ठीक है ना, एक लेयर बना देंगे, फिर उसके बाद डीपीसी, फिर उसके बाद एक और लेयर लेंगे, ठीक है ना, कंक्रीट का, यानी कि बीच में डीपीसी आएगा, फिर उसके बाद ये टाइल्स वगैरह आएगी, ठीक है। इस तरीके से डैम प्रूफिंग लेयर लगाना है। ऐसा नहीं कि ये ब्लैक जो डैम प्रूफिंग लेयर है टॉप पे लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें ये बीच में लगाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये इसके अंदर वाटर आने के बाद खराब तो नहीं कर देगा, ये नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो अंदर से खराब नहीं होगा ऊपर वाला मटेरियल खराब नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा और अगर आपको लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, तो हम डीपीसी के लेयर को थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, लेकिन इसको हम सबसे ऊपर नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपको टाइल्स लगाओगे तो फिर मतलब क्या होगा, अब कुछ लुक ही नहीं आएगा उसका। तो हम डीपीसी के लेयर को थोड़ा सा ऊपर लेकर जस्ट फ्लोरिंग टाइल्स के नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये लेयर दिख रहा है, ठीक है। फ्लोर टाइल्स के जस्ट नीचे हॉट बिटुमिन या डीपीसी का लेयर है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये देखिए इस तरीके से मेन वॉल के जस्ट बाजू में एक्सटर्नल वॉल में इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये फाउंडेशन लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो हम कोई भी पिट अगर हमने एक्सकेवेट किए तो नीचे जो कॉर्नर वॉल्स है उसके बाजू में हम लगा सकते हैं ताकि वाटर एंटर ना हो। आरसीसी फ्लोर्स है, ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कंक्रीट का लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर डीपीसी का एक लेयर लगा देंगे, सेम प्रोसीजर है सबका वही, ठीक है ना। अगर कोई एस्फाल्ट टैंकिंग भी होता है,
इसमें क्या होता है, इस तरीके से हॉट बिटुमिन का एक लेयर फ्लोर के, जैसे कि वुडन फ्लोर है, इसके ऊपर लगा देंगे, फिर इसके ऊपर और एक लेयर लगाएंगे। इस तरीके से वर्टिकल डीपीसी भी होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी हम लगाते हैं हॉट बिटुमिन वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग होती है फ्लैट स्लैब की, देखिए इस तरीके से फ्लैट स्लैब जो होता है, इसमें हम क्या करेंगे, हॉट बिटुमिन का एक लेयर, जनरली हॉट बिटुमिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी सब वही है, सेम मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग में भी वही है। इस तरीके से हम आरसीसी स्लैब के ऊपर शीट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर कोई और मटेरियल से उसको ढक देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डीपीसी काम करता है, ठीक है ना। इसके एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, इम्पॉर्टेंट उसका मटेरियल है, ठीक है ना। अलग अलग हम लेयर में, अलग अलग इसकी थिकनेस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।